हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello बच्चों, good morning. So today we are going to solve the previous year questions on semiconductor from the CET point of view. Okay, so previous year questions on MST CET semiconductors. So question number 1. Now see, what is the question number 1? In a full wave rectifier, circuit is operating from 50 Hertz main. The fundamental frequency in the ripple will be. करेक्ट, आपको क्या फाइंड करना है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रिपल. सो यू ऑलरेडी स्टडीड द हाफ वेव रेक्टिफायर. साइमल्टेनियसली मैं थोड़ा बेसिक्स भी बताऊंगा, सब कुछ. हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द व्हाट? फुल वेव रेक्टिफायर. सो बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर? टू कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी. उसके अपोजिट होता है इन्वर्टर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर? टू कन्वर्ट द डीसी इनटू एसी. इज इट क्लियर? सो आपने देखा था बच्चों, जब हाफ वेव की बात करेंगे तो वन डायोड यूज करते हैं, करेक्ट. एंड जो आपका आउटपुट होता है, आउटपुट वोल्टेज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? हाफ वेव में, करेक्ट. सेकेंड हाफ इट अगेन half like this. This is the what? Half wave rectifier से मिला हुआ output voltage from the AC input voltage. And whenever we're talking about the full wave rectifier, so we know that you are getting the what? That is a continuously half cycle. Now ripple factor, whenever we're talking about the ripple factor or ripple frequency जो होती है बच्चों, so ripple frequency is equal to 2 into fundamental frequency. अभी आपको इस क्वेश्चन में किसकी बात कही है? फुल वेव रेक्टिफायर. तो इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. एंड अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है बराबर टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. Correct, because in each cycle of AC you are getting the what? 2. That's why in case of full wave rectifier this becomes twice. In case of half wave rectifier, in one cycle of AC you are just getting the one output. So यहाँ से आंसर कितना बनेगा रे? So करेक्ट, तो होगा, सो रिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 into 50 इज इक्वल टू 100 हर्ट्स. आपको मालूम है इन दिस केस हम यूज करते हैं 2 डायोड्स. ठीक है, चलो द नेक्स्ट. What is the next question? A barrier potential of PN junction does not depend on. Barrier potential of what? PN junction diode does not depend on. Now see बच्चों, PN junction diode होता क्या है रे? P type of semiconductor material is joined with the N type of semiconductor material. सही है. सो आपको मालूम है, अभी मैं सब बेसिक्स बता रहा हूं, ध्यान दे दो अच्छे से. इन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द होल्स. ओके, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट, मैं कलर रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. सो यहां से इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और इस साइड होल का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है. Whenever we join the p-type semiconductor material with the n-type of semiconductor, so at that time what happen bachcho? The majority charge carriers which are the what? Holes from this side are move from left to right, correct. And in this case electrons are the majority charge carriers, they are move from right to left. So what happen? These holes diffuse inside the electrons. So at that time here the immobile charge carriers are formed in this region. So what happen? Finally it is set up like this. यहाँ पे बनेगा region of what? Positive charge holes. यहाँ पे बनेगा बच्चों negative charge electron. Means what रे? As far as possible there is a diffusion of the holes from the p side into the इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द n साइड. एंड यहां पे क्या फॉर्म हो जाते हैं? इमोबाइल चार्ज कैरियर्स. इमोबाइल चार्ज कैरियर्स और विच इज ऑल्सो कॉल्ड द आयंस.
ठीक है. सो व्हाट हैपन कि बाबा यहाँ पे क्या डेवलप हुआ रे बच्चों, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव. सो यहाँ पे एक डेवलप हुआ पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल. ये वो बैरियर खड़ा कर रहा है अभी. More holes want to diffuse inside the electrons, but this barrier potential is developed. Now it opposes the diffusion process. अरे करेक्ट. सो इन दिस केस ये जो रीजन है बच्चों, दिस विड्थ वेयर दिस डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन प्लेस, दिस रीजन इज कॉल्ड द डिप्लेशन रीजन. सही है. सो यहां पे बाद में मालूम है आपको कि यहां बाबा मेटल प्लेट कनेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और द पोटेंशियल. इज इट क्लियर? सो ये जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन है बच्चों, आपको पूछा है किस पे डिपेंड करती है. सो फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट, फॉरवर्ड बायस. Second, it depends on the doping density. Doping means what? You already studied the two types of semiconductor: intrinsic semiconductor, extrinsic. Intrinsic semiconductor मतलब pure forms of semiconductor material, that is a silicon and germanium. And extrinsic semiconductor मतलब impure or dope semiconductor in which we add the what? External impurity, and on the basis of that extrinsic semiconductor are against two types: p-type semiconductor, n-type semiconductor. In p-type semiconductor we add trivalent impurities like the what? Bolo, boron, aluminium, indium, with these added. So in this case what happen? Majority charge carriers are what? Holes. Minority charge carriers are electrons. In the n-type semiconductor we added the pentavalent impurities like of what? Phosphorus is there, then antimony is there. Is it clear? So and the lead, I think so. So these are the pentavalent material. So in this n-type semiconductor, electrons are the majority charge carriers and holes are the minority charge carriers. Means what? Depends of this doping density. Is it clear? So generally remember that इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है कि बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो कि that depletion is inversely proportional to doping density. अरे डिपेंड तो कर रहा है लेकिन इस पे क्वेश्चन बन देगा है कैसा? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग डेंसिटी, मतलब जितना ज्यादा डोपिंग उतना डिप्लेशन रीजन कम होगा. अरे आए क्या समझ में? ठीक है. नाउ सेकंड थिंग देखो बच्चों, डिप्लेशन का हुआ देन किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? डिप्लेशन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अरे इज इट क्लियर? तो बच्चों किस पे डिपेंड नहीं करता ये? It does not depend on the diode design, but it depends on, in addition to that, it depends on the type of semiconductor materials. Is it clear? So important है, समझ में आया? So बच्चों यहाँ पे और एक चीज बता देता हूँ, डायग्राम ड्रॉ किया है. तो दो टाइप ऑफ बायसिंग, वन इज अ फॉरवर्ड बायस, सेकेंड वन इज अ रिवर्स बायस. सो होता क्या है? नाउ सी, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस मतलब व्हाट रे बच्चों? नाउ सी, टू टाइप ऑफ बायसिंग इज देयर, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. यहां पे मैंने कंसीडर किया पी टाइप, एन टाइप, अगेन पी टाइप, एन टाइप आर जॉइन. देन नाउ सी, हियर इज द मेटालिक plates are there, so we join the battery with that. Again in this case also we join battery. नाउ सी क्या डिफरेंस दे रहे हैं? तो बच्चों ये जो पहला केस है, दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग. व्हाट इज मीन बाय फॉरवर्ड बायस? P type of semiconductor is joined with the positive terminal of battery and N type is joined with the negative terminal of battery. P to P, N to N, forward bias. What is the reverse bias? P type is joined with the negative terminal of battery, N type is joined with the positive terminal of battery. It is called reverse bias. So why I am telling this? Because इस पे क्वेश्चन आए हैं. In case of forward biasing होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल का डायरेक्शन ये, और आपने ऑलरेडी देखा है बच्चों कि जो बैरियर पोटेंशियल है वो कहां से कहां एक्ट होता है? राइट टू लेफ्ट. अरे सही है क्या? ये सपोज एक्सटर्नल, मतलब ये दोनों अपोज होते हैं. तो जब फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करना है तो आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है इट शुड बी ग्रेटर देन द बैरियर, तो ओवरकम करके करंट फ्लो होगा. अरे आ रहा है समझ में? मतलब इन दिस केस द करंट इज फ्लोइंग.
because we are using the battery having the potential greater than barrier. इस केस में क्या होगा बच्चों? नाउ सी कि जो आपका ये डायरेक्शन ये भी लाइक दिस एंड बैरियर पोटेंशियल भी लाइक दिस, इससे होगा क्या? हाँ, डिप्लेशन रीजन बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, इसमें डिप्लेशन रीजन कम होगा. सो मतलब यहां पे क्या होगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फ्लो द करंट. हो भी गया तो वेरी माइनर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस. करेक्ट? मतलब इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस current is flowing, in case of reverse bias very less. Or is it clear? In case of forward bias width of depletion region decreases, in case of reverse bias width of depletion region increases. Or is it clear? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हुआ हमारा ओके. चलो तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा तो डायोड डिजाइन पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, नेक्स्ट बोलो बच्चों. डायग्राम दिखाई दे रहा है. इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मटेरियल शोन बिलो, ओपन सर्कल्स एंड फील्ड सर्कल डिनोट्स द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली. मटेरियल इज. बच्चों यहां पे आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि नहीं मालूम नहीं. देखो किसका कौन से सर्कल ज्यादा है दिखाई दे रहे? ओपन सर्कल ज्यादा है देखो. करेक्ट? और जो फील्ड सर्कल्स है वो कम है. इज इट क्लियर? तो यहां पे आपको पूछा है होल्स आर डिनोटेड बाय द व्हाट? ओपन सर्कल एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड सर्कल. तो आपको पूछा है मटेरियल कौन सा होगा. अभी हमने कहा वेरी गुड कि बाबा पी टाइप में होता क्या है रे? बोलो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा? पी टाइप में होल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. इसको क्या बोलते हैं? होल डेंसिटी, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. देन वही अगर हम बात करेंगे बच्चों एन टाइप की, तो एन टाइप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर कंपेयर टू होल्स. मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड द होल्स आर द व्हाट? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. नाउ सी बच्चों, सो यहां पे आप देख रहे हो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? होल का. तो होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब ये कौन होगा? पी टाइप होगा. इज इट क्लियर? कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. A PN photodiode is made up of material with a band gap of 2 electron hole. The minimum frequency of the radiation that can be absorbed by the material is nearly. Now सबसे पहले बच्चों फिर से थोड़ी थ्योरी बताता हूं फास्ट. आपको मालूम है? बोलो. यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ये जो होता है ये कौन सा बैंड रे? वैलेंस बैंड. यहां पे होता है कंडक्शन बैंड. सो व्हाट इज द एनर्जी गैप रे? इट इज द, बोलो, energy gap between the top of the valence band and the bottom of conduction band. It is called the what? Forbidden energy gap. सही है, ध्यान में दे दो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट बच्चों? अगर मैं बात करूं मेटल्स और कंडक्टर्स की, अरे करेक्ट, तो कंडक्टर्स में बच्चों ये जो एनर्जी गैप होता है वो जीरो होता है. मतलब क्या कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप होते हैं, तो इनमें कुछ गैप ही नहीं होता. किसमें? मेटल्स में. जब हम बात करें बच्चों सेमीकंडक्टर्स की, सो एनर्जी गैप इज प्रेजेंट विच इज व्हाट? बोलो, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. करेक्ट? यही अगर मैं बात करूं बच्चों इंसुलेटर्स की, तो उसमें एनर्जी गैप होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. समझ में आ रहा है? और अगर हम स्पेशली हमेशा आता है जर्मेनियम एंड द व्हाट? सिलिकॉन. इन केस ऑफ सिलिकॉन वो कितना होता है रे? 0.7 इलेक्ट्रॉन होता है. इन केस ऑफ जर्मेनियम वो कितना होता है? 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो बच्चों यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, सो वैलेंस बैंड, तो कंडक्शन में कौन पार्ट लेता है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड. अरे करेक्ट. तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है इंसुलेटर में क्या होता है? सो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है, बिकॉज इंसुलेटर कैन नॉट कंडक्ट द करंट. अरे करेक्ट. तो इसलिए कंडक्टर करंट फ्लो करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड. बट ठीक है, यहां पे ध्यान दे दो. अभी बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है कि बाबा आपको एनर्जी गैप दिया है 2 इलेक्ट्रॉन होल, तो क्वेश्चन है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट कैन बी एब्सॉर्ब बाय द मटेरियल.
इज इट क्लियर? तो बच्चों यहां पे ध्यान दे दो। सो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है कि बाबा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है ना, मिनिमम मतलब क्या, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर व्हाट, फॉर एनर्जी इमिशन, एनर्जी रेडिएशन। अरे इज इट क्लियर? सो यहां पे आपको क्या होता है सवाल कि बाबा फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बच्चों क्या होता है, कंडीशन लिख के देता हूं मैं, राइट डाउन द कंडीशन कि बाबा एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी रेडिएशन इज इक्वल टू एनर्जी गैप होती है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन किसके बराबर होती है, एनर्जी गैप। तो मतलब क्या, नाउ सी आपको एनर्जी गैप कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नाउ सी, सो आपको मालूम है क्या इक्वेशन लिया, बोलो फिर से, एनर्जी रेडिएशन इज इक्वल टू एनर्जी गैप। और हमने डुअल नेचर में वही तो स्टडी कर रहे थे कंटिन्यूअसली। एनर्जी रेडिएशन क्या होती है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, HF, करेक्ट, इज इक्वल टू एनर्जी गैप आपको दिया है डायरेक्टली, कितना है वो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अरे आया क्या समझ में? सो बोलो अभी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो करो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, बच्चों फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट हर्ट्ज में है तो इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं चलेगा। सो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जूल जाना है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, डिवाइडेड बाय कितना होता है रे, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 विच इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। करेक्ट, नाउ डू द कैलकुलेशन। क्या आ जाएगा बोलो यहां से बच्चों, 16d का 34 अपॉन में 6 कंसिडर करता हूं तो ऊपर चल जाके कितना होगा, +14 होगा। अरे करेक्ट, सो यहां से कितना बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 5.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, नहीं तो 7 पकड़ो। अरे आया क्या समझ में? सो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इतनी होनी चाहिए, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। सो यहां पे देखो कितना है, सो 5 है। अरे करेक्ट, सो 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज शुड बी द आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, फॉरबिडन एनर्जी गैप समझ में आया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर, हाँ गलती नहीं करने की है बाबा, सेमीकंडक्टर में इन केस ऑफ कंडक्टर ओनली द इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। नहीं तो आप सोचोगे ये सही बात है कि पी टाइप में होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है, चार्ज कैरियर्स कौन से, तो दोनों भी है। खाली क्या है, होल्स इन लार्ज नंबर है तो इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉलर नंबर है, मतलब खाली होल्स ओनली मत लिखो, मेजोरिटी कैरियर्स बोथ आर प्रेजेंट। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, a change of 8 milliampere in the emitter current brings a change of 7.9 milliampere in the collector current. So the value of alpha and beta are, तो बोलो बच्चों यहां पे क्या है, नाउ सी क्या क्या दिया है वो तो बोलो। 8 मिलीएम्पियर चेंज है, मतलब कौन, डेल्टा आई ई इज इक्वल टू 8 मिलीएम्पियर। सेकेंड, brings the change of 7.9 in the collector current, ठीक है। आपको क्या पूछा है बच्चों, अल्फा एंड बीटा आर द करंट गेन्स, दोनों क्या होते हैं, करंट गेन्स। क्या फॉर्मूले होते हैं, नोट डाउन करो। अल्फा जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, और बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, नोट डाउन करो कि बाबा जो अल्फा होता है बच्चों वो होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और जो बीटा होता है वो होता है अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा। अरे करेक्ट। सो यहां पे अभी इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है बच्चों। सो आप देख रहे हो आपके पास कौन सा वैल्यू है, आई और आईसी है। सो मुझे बताओ आईसी और आई से क्या मिलेगा, सबसे पहले अल्फा मिलेगा कि नहीं, दोनों करंट प्रेजेंट है तो अल्फा का वैल्यू बोलो, निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। डेल्टा आईसी कितना रे बच्चों, 7.9, दोनों का यूनिट मिली एम्पियर है तो रेशियो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 8। सही है, तो कितना बनेगा ये 79/80, नहीं तो करो वैसे ही डिवाइड, 0.89 का 72,
करेक्ट, बचेगा 770 फिर से, तो कितना आएगा 8 का 64 होएगा, फिर से 67 इतना आएगा। सो मतलब अल्फा इज नियर अबाउट 0.99 होगा। अरे करेक्ट, अल्फा तो मिल गया बच्चों, एनी डाउट नहीं। अभी आपको फाइन कौन करना है? अरे हाँ, वन मोर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बाबा, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो बीटा की वैल्यू नियर अबाउट 10 to 100 के बीच में होती है, मतलब आपका कभी कंफ्यूजन नहीं रह जाए। अरे करेक्ट, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो बीटा इज लाइक बिटवीन 10 to 100। इज इट क्लियर? हाँ। सो मतलब यहां से आपको समझ में आना चाहिए बाबा, अल्फा लेस होता है तो 0 पॉइंट में रहेगा इस क्वेश्चन में। तो बोलो सेकंड क्या फाइंड करना है आपको? बीटा। सो बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो करो सब्स्टिट्यूट, क्या होगा? अल्फा कितना है बच्चों? 0.99, मत सब्स्टिट्यूट करो, कंफ्यूजन हो जाएगा। करेक्ट, तो क्या सब्स्टिट्यूट करो? इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो। क्या होगा बोलो? 7.9 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 1 माइनस 7.9 डिवाइड बाय 8। आया समझ में? तो कितना हो जाएगा? 7.9, 8 माइनस 7.9 कितना बच्चों? 0.1, 8 कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम्स 79। इज इट क्लियर? तो यहां से मिलता है अल्फा का वैल्यू 0.99, तो बीटा का वैल्यू 79, यानी ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूले समझ में आए? करंट गेन वाले अल्फा आईसी अपॉन आई, बीटा आईसी अपॉन आई बी, रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन में कुछ डाउट समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट वन। When the two inputs of NAND gate are shorted, the resulting gate is, बोलो NAND gate क्या होता है रे? Yes, it is a AND plus NOT ना? हर सही है क्या बच्चों? हाँ, तो मुझे बताओ इसका डायग्राम कैसा होगा फिर? बाबा AND गेट ठीक है, इसके आगे कनेक्ट किया NOT, ठीक है, अरे सही है क्या बच्चों? नाउ जब वो सेपरेटली होते हैं तो वो कुछ नैंड गेट का आपका ट्रूथ टेबल पता होगा, क्या होता है बोलो? ए बी वाई, बोलो बच्चों, यहां पे 0 0 1 0 0 1 1 1। अभी आपको मालूम है एंड में क्या होता है? खाली 1 1 1 मिलता है, तो उसका अपोज करो, मतलब क्या होगा? 1 1 1 0। सही है क्या? करेक्ट, दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर व्हाट? नैंड गेट। नाउ सी, शॉर्ट किया मतलब क्या? कि बाबा ये दोनों टर्मिनल ज्वाइन किए, मतलब क्या? अभी सेपरेट टू इनपुट्स नहीं जाएंगे, एक कॉमन इनपुट जाएगा। मतलब क्या होगा कि बाबा अगर मैंने यहां पे 1 दिया तो यहां पे कितना होगा रे? अरे दोनों का 1 1 ना, 0 कैसे होगा? 1 होगा ना। अरे करेक्ट, और बाद में इसका क्या होगा? 0 होगा। इज इट क्लियर? मतलब पहली कंडीशन बाबा 1 आया तो आउटपुट 0, सेकंड में मैंने 0 दिया तो यहां पे 0 और यहां पे रहेगा 1, मतलब यहां पे 0 तो यहां पे 1। ये कौन शो कर रहा है? नॉट गेट शो कर रहा है। मतलब बाबा जब शॉर्ट किए तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट? दिस इज फॉर व्हाट? नॉट। अरे समझ में आया क्वेश्चन? सो ये जो आंसर रहेगा इसमें किसका रहेगा बच्चों? नॉट का। अरे ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid reflects the incident line and its electrical conductivity decreases with temperature. The binding in this solid is. So सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, आपको दिया है कि वो आयनिक होगा, कोवैलेंट होगा, मॉलिक्यूल होगा, मेटालिक होगा। समझ में आना चाहिए, मतलब कुछ नहीं भी समझ में आया तो डायरेक्टली मेटालिक होगा। क्यों? सबसे पहले सॉलिड पे लाइट इंसिडेंट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्यों होता है ये? Because when the light is incident on the metal surface, so what happen? Inside there is a what? Vibrations of the electrons because of energy incident of the electric field. अरे करेक्ट ना, हमने स्टडी किया ना बाबा, लाइट इंसिडेंट होता है मतलब क्या होता है? उसके पास एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो वाइब्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से लाइट रिफ्लेक्ट होगा। सेकेंड, ये तो मालूम है आपको बाबा, इन केस ऑफ मेटल ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? कि बाबा कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। क्यों? आपको मालूम है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अरे करेक्ट, तो यहां पे क्या है? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। सही है,
अरे आए के समझ में? सो ऑल दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? मेटल्स, दैट्स व्हाई उसका जो होना चाहिए सॉलिड वो कौन होना चाहिए? मेटालिक. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट, द एनर्जी बैंड गैप दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन इन कंडक्टर. दिखाया ना मैंने, जीरो होता है ना, बिकॉज इन केस ऑफ मेटल वो क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. दैट्स व्हाई एनर्जी गैप कितना होता है? जीरो होता है. ठीक है. नेक्स्ट, इन एलईडी विजिबल लाइट इज प्रोड्यूस बाय गैलियम आर्सेनाइड. किससे प्रोड्यूस होता है? गैलियम आर्सेनाइड. आपको मालूम है बच्चों, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, ये सबको टेबल है, कैरेक्टरिस्टिक दिया है बाबा. गैलियम आर्सेनाइड, नाइट्राइड, गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड. करेक्ट. ऑल दीज कॉम्बिनेशंस गिव द डिफरेंट कलर्स. अरे करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड डिप्लेशन लेयर विड्थ. बोलो, मैंने एक्सप्लेन किया है. रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस कि पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर का विड्थ इंक्रीज होता है. दैट्स व्हाई वो करंट फ्लो नहीं होता. सो क्या होना चाहिए? इंक्रीजेस होती है. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, टू यूज अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर बेसिकली? It is a device which transmit the signal from low resistance to high resistance. अरे करेक्ट. इट्स एज अ कंट्रोल डिवाइस. सो यहां पे आपको कहा है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. दिस इज एप्लीकेशन. आपने स्टडी किया है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. एम्पलीफायर मीन्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. अरे इज इट क्लियर? सो यहां पे आपको मालूम है बच्चों, ट्रांजिस्टर पे क्या होता है बेसिकली? सिंबल आपको मालूम है बच्चों? अरे सही है. सो यहां से ये जो होता है, दिस इज व्हाट? इमीटर, बेस, कलेक्टर. यहां से फ्लो होगा. अरे समझ में आ रहा है? सो इन दिस केस ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, इन ट्रांजिस्टर और देयर आर द थ्री कॉन्फिगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर. लेकिन इन ऑल द केसेस इमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस. अरे करेक्ट. देन यहां से बच्चों बेसिक थ्योरी कवर करवाता हूं इमीटर बेस कलेक्टर की, जहां पे क्वेश्चंस बनते हैं. तो दो कॉलम बनाओ. यहां पे मैं लिखता हूं इमीटर देन बेस कलेक्टर. सो बच्चों जनरली दो टाइप में आपको क्वेश्चन पूछते हैं. एक क्वेश्चन पूछते हैं बेस्ड ऑन द डोपिंग और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं एरिया और वी कैन से दैट अबाउट द साइज. अरे करेक्ट. सो यहां पे ध्यान दे दो बच्चों कि यहां पे इमीटर डोपिंग हेवीली डोप होता है सबसे ज्यादा. सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होता है? इमीटर में. सबसे कम डोपिंग कहां पे होता है? बेस में. और इन बिटवीन दैट इज अ मॉडरेटली, वो होता है कलेक्टर. ठीक है. बिकॉज जो चार्ज सप्लाई करता है, कौन चार्ज सप्लाई करता है? इमीटर करता है. सो दैट्स व्हाई इमीटर इज हेवीली डोप होता है. साइज अभी होता क्या है बच्चों? जो कलेक्टर में होता है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस व्हाट हैपन, देयर इज अ हीट इज जनरेटेड एंड फॉर द इजीली हीट डेसिपेशन द कलेक्टर इज हैविंग द लार्ज साइज. मतलब अगर हम साइज की बात करेंगे तो साइज में मॉडरेट होता है, इमीटर का साइज मॉडरेट होता है, बेस सबसे थीन होता है और ये सबसे लार्ज होता है. Are you correct? So this is the basic difference between emitter base collector by the two criteria, by the doping and the what? Size wise. And always likho emitter is in forward bias and collector is in reverse bias. So मेरे ख्याल से यहां पे आपका क्वेश्चन क्लियर होगा. इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस. समझ में आ गए टर्म्स? एनी डाउट? सिंबल किसका भी पूछते तो सिंबल्स पता होने चाहिए. अरे करेक्ट. ठीक है. तो अभी ये खाली बेसिक ट्रांजिस्टर दिखा है, लेकिन इसमें तीनों के सिंबल अलग अलग है. कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट. सो मैं बेसिक भी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ध्यान दे दो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन चैनल इन केस ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन? यू ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड द कम्युनिकेशन. अरे करेक्ट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर देयर. कौन से बोलो?
ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन, स्पेस प्रोपगेशन। अरे सही है। सो रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होता है? सिंपल है, इसमें कुछ नहीं था। क्या होता है? फ्री स्पेस कम्युनिकेशन आपने स्टडी किया है बाबा। देयर आर द devices, one is a transmitter, one is a receiver, in between that there is a what? Actual communication system। उसमें आता है मॉड्यूलेटर आता है। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। इन इंसुलेटर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज, बोलो बच्चों, एक्सप्लेन किया है। इंसुलेटर में क्या होता है? करंट फ्लो नहीं होता, मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मतलब कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, और वैलेंस बैंड फील्ड होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन है? यस, सी ऑप्शन। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट। In a common base circuit of transistor, current amplification factor is 0.95. Calculate the emitter current if the base। अभी नाउ सी बच्चों, आपको समझ में आएगा। ये 0.95 करंट एम्प्लीफिकेशन है, लेकिन दो है बाबा, अल्फा है क्या बीटा है। इसलिए मैंने कहा अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, मतलब ये होगा कौन? अल्फा होगा। अरे समझ में आ रहा है? सो यहां से आपको दिया क्या है, राइट करो सबसे पहले कि बाबा दिया है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी अल्फा दिया है 0.95। कैलकुलेट द इमीटर करंट, बेस करंट दिया है, बेस करंट कितना है? 0.2 मिली एम्पियर। आपको फाइंड करना है बच्चों आई ई। तो मुझे बताओ जो अल्फा दिया है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अल्फा का फॉर्मूला होता है आई सी अपॉन आई ई। अरे इज इट क्लियर? तो बच्चों और एक चीज ध्यान में रखो, और एक फॉर्मूला। इन कॉमन बेस सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर, इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होता है। समझ में आ रहा है? मतलब मैं यहां पे आईसी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं रे? आई माइनस आई बी अपॉन आई इज इक्वल टू अल्फा। इज इट क्लियर? सो आपको फाइन कौन करना है बच्चों? आई फाइन करना है। सो अगर मैं सेपरेट डिवाइड करता हूं, अरे चलेगा क्या? हाँ, मुझे बताओ आई निकलना है, आई बी है, अल्फा है, ओनली वन अननोन इज देयर। सो करो कैलकुलेशन करो, 0.95 इज इक्वल टू 1 माइनस आई बी कितना? 0.2 अपॉन आई ई। तो बोलो बच्चों 0.2 अपॉन आई ई इज इक्वल टू 1 माइनस 95 मतलब 0.05। तो आई कितना बनेगा रे? आई ई इज इक्वल टू 0.2 अपॉन 0.05 यानी 4 मिली एम्पियर। कितना आएगा बच्चों? 4 मिली एम्पियर। कैसे भी करो, आप ऐसे भी कर सकते हो बाबा। यहां पे अल्फा है तो आपको अल्फा बीटा का रिलेशन पता है, तो बीटा निकालो और डायरेक्टली कैलकुलेट करो। अरे 2 ways आर देयर, नहीं तो ऐसे कैलकुलेट करो। कुछ डाउट क्वेश्चन में? समझ में आया? ऑलरेडी आई हैव गिवन ऑल द फॉर्मूलेस। सो 4 मिली एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट। For a transistor, the current ratio alpha DC is 69/70 current gain। रिलेशन यूज करना है खाली। अरे बराबर ना, आपको दिया है अल्फा डीसी दिया है। अल्फा डीसी कितना है? 69/70। आपको कौन फाइंड करना है? बीटा डीसी। तो बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीटा डीसी? बीटा डीसी होता है अल्फा डीसी अपॉन बोलो 1 माइनस अल्फा डीसी। सो सब्स्टिट्यूट करो, कितना आ जाएगा? 69/70 अपॉन 1 माइनस 69/70 यानी मेरे ख्याल से कितना बाकी रहेगा? ओनली 69। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नहीं? सो यहां से आपका आंसर मिलता है 69। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन एन ऑसिलेटर फॉर सस्टेन ऑसिलेशन द बार्कहाउसेन क्राइटेरिया is A beta equal to A is a voltage gain without feedback and beta is the feedback factor। So बच्चों क्या है? सबसे पहले ये जो क्राइटेरिया है that is a बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, ये किसके लिए है यूज आ सकता है? बार्कहाउसेन जो क्राइटेरिया है वो किसके लिए है बच्चों? कि जो गिवन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो ऑसिलेटर जैसे एक्ट होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड करने वाला फैक्टर। इज इट क्लियर? सो यहां से वो जो फैक्टर है बच्चों, इसमें 3 कंडीशंस है। तो जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है आपको ए बीटा, इट इज कॉल्ड द लूप गेन। इसको क्या बोलते हैं? लूप गेन। ए क्या है बच्चों? वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। सो ये जो फैक्टर है वो होता है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज
इनपुट क्या है कि बाबा यहां से आपका होता है एम्पलीफायर, यहां से होता है आपका फीडबैक डिवाइस, करेक्ट। तो यहां से मिलता है आपको वी आउटपुट और यहां पे आपका आता है वीएफ, अरे करेक्ट। तो ये जो है बार क्वेश्चन क्राइटेरिया समझ में आया बच्चों, मैंने यूज बताया उसका, ये डिसाइड करेगा कि गिवन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑसिलेटर जैसे एक्ट होगा कि नहीं होगा। तो एक्ट होगा तो किस टाइप के ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट। सो पहला इसमें आता है, नाउ सी कि अगर मैं बात करता हूं बच्चों, फर्स्ट थिंग बीटा, सॉरी दिस ए बीटा लेस देन 0, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ऑसिलेटर जैसे एक्ट नहीं करेगा। सेकेंड कंडीशन बच्चों, व्हेन ए बीटा इज इक्वल टू 1 इट एक्ट्स एज अ ऑसिलेटर एंड आल्सो प्रोड्यूसेस सस्टेनेबल ऑसिलेशंस, यानी यूनिफॉर्म ऑसिलेशंस। अरे इज इट क्लियर, मतलब एक कांस्टेंट ऑसिलेशन आपको मिलेंगे, सस्टेनेबल ऑसिलेशन। कब? जब ये लूप गेन 1 के बराबर होगा, जब ए बीटा ये ग्रेटर देन 1 एक्ट होगा, ऑसिलेशंस तो प्रोड्यूस होंगे, अरे करेक्ट, लेकिन वो जो होंगे वो अनसस्टेनेबल, मतलब क्या रे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, एक कांस्टेंट ऑसिलेशन नहीं मिलेंगे। सो अनसस्टेनेबल ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस। और बच्चों ये जो लेस देन 0 है, आप यहां पे एक कह सकते हो कि बाबा ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो गए, लेकिन वो डिक्रीज होते, आफ्टर सर्टेन टाइम दे बिकम डाई आउट, यस, व्हेन इट इज लेस देन 0। तो बच्चों समझ में आया। सो जो बार्कहाउसेन इफेक्ट है वो क्राइटेरिया देता है गिवन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विल ऑसिलेट और नॉट, तो ऑसिलेट होगा तो किस टाइप के ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगा, ये डिसाइड करने वाला इफेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। सो यहां से क्या आंसर होगा, आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, सस्टेनेबल ऑसिलेशंस, तो ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एनी डाउट? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, स्कीमेटिक सिंबल ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। बोलो बच्चों, इजी है, लाइट इमिट कर रहा है, अरे बराबर, लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये किसका होगा रे, फोटो डायोड। ये किसका सिंबल है बच्चों, फोटो डायोड। ये किसका है, एलईडी का। ये किसका है बोलो, यस, जेनर डायोड और एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। और ये कौन है रे सब, पीएन जंक्शन डायोड, करेक्ट। अरे समझ में आया ना, कौन सा भी पूछ सकते हैं ना, सबके सिंबल्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो यहां से आपका आंसर कौन सा है एक्चुअल में, बोलो, ये हुआ आपका आंसर एलईडी का। कुछ डाउट सिंबल में समझ में आया? एलईडी का काम क्या रे, टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। फोटो डायोड का काम क्या, टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज इट क्लियर? जेनर डायोड किस लिए यूज करते हैं, इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इट एक्ट्स एज अ स्टेबिलाईजर, इट वर्क्स इन रिवर्स बायस, वेरी गुड। एलईडी इज वर्क इन फॉरवर्ड बायस, फोटो डायोड यूज इन रिवर्स बायस। अरे इज इट क्लियर? सब पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी आर द करंट रेशियोज। तो बच्चे ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, आपको फॉर्मूला मालूम है ना, करो, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो बोलो बीटा डीसी कितना होता है, आईसी अपॉन आईबी, अल्फा डीसी कितना होता है, आईसी अपॉन आई। तो बच्चों ये यूज करके वो फाइंड आउट करो कितना आ रहा है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। सो करो सब्स्टिट्यूट, क्या हो जाएगा फटाफट, आईसी अपॉन आई बी माइनस आईसी अपॉन आई ई इंटू आईसी अपॉन आई ई इंटू आईसी अपॉन आई बी, करेक्ट। तो करो कैलकुलेशन, कितना आ रहा है, एक तो तय, यहां से क्या होगा रे, आईसी कॉमन आके अंदर क्या बचेगा, आई माइनस आई बी अपॉन आई बी इंटू आई, और नीचे क्या होगा, आईसी स्क्वायर अपॉन आई ई इंटू आई बी। तो ये कैंसिल हो जाएगा,
ये एक IC कैंसिल हो जाएगा, सो क्या बाकी रहेगा, I माइनस IB अपॉन IC। और मेरे ख्याल से मैंने पिछले क्वेश्चन एक इक्वेशन दिया था कि बाबा I किसके बराबर होता है, IB प्लस IC। तो बच्चों IC क्या होगा, I माइनस IB, मतलब ये भी क्या है IC, सो IC अपॉन IC, तो वैल्यू कितनी बनेगी, आए समझ में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। फोटो डायोड इज अ डिवाइस, बोलो, अभी डिस्कस किया हमने, विच इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, अरे करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, a transistor is used as a common emitter amplifier with a load resistance of 2 kilo ohm. The input resistance is 150 ohm. The base current changed by 20 microampere, which results in the change of collector current by 1.5 milliampere. The voltage gain of the amplifier. आराम से मुझे बताओ, जो जो समझ में आ रहा है लिखो, बोलो। पहला क्या दिया है, लोड रेजिस्टेंस मतलब आउटपुट, सो कितना है देखो, आर आउटपुट इज इक्वल टू बच्चों 2 किलो ओहम मतलब 2000 ओहम। बाद में दिया है इनपुट रेजिस्टेंस, कितना होता है रे, 150 ओहम, ठीक है। नेक्स्ट, बेस करंट चेंजेस बाय मतलब कौन रे, डेल्टा आई भी दिया है, कितना 20 माइक्रो एम्पियर, विच रिजल्ट इन चेंज इन कलेक्टर करंट मतलब डेल्टा आईसी कितना दिया है 1.5 मिली एम्पियर, यूनिट पे भी ध्यान दे दो। सो आपको फाइंड करना है वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, क्या फाइंड करना है, वोल्टेज गेन। तो बच्चों ये गेन मतलब इजी है, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब क्या, मुझे वोल्टेज गेन फाइंड करना है तो वो होता है वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट, अरे करेक्ट। तो अभी बात किसकी हो रही है, कॉमन इमीटर में। तो कॉमन इमीटर में बच्चों ये V आउटपुट आपको मालूम है ना, ओम्स लॉ अनुसार V क्या होता है, IR होता है, अरे करेक्ट। तो यहां से फॉर्मूला ध्यान में रखो, क्या होता है, बीटा इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट, अरे इज इट क्लियर। तो अभी देखो आपके पास क्या है क्या नहीं है, R आउटपुट है, R इनपुट है, लेकिन बीटा क्या होता है बच्चों, गलती मत करो, ये कॉमन इमीटर की बात हो रही है, यहां पे बीटा होता है, बोलो, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, हर सही है क्या। तो है क्या आपके पास आईबी आईसी है क्या आपके पास आर वो आउटपुट, तो करो कैलकुलेशन। अरे समझ में आया क्या क्वेश्चन, फॉर्मूला समझ में आया। ये देखो मैंने कहा मुझे सामने आया पावर गेन, तो क्या होगा, अभी एक बात तो समझ में आएगी, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। फिर से मुझे बोलो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, मतलब पर फिर से पावर का फॉर्मूला आया, पावर गेन इज इक्वल टू वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। अरे बेसिक वही सब फॉर्मूले, खाली गेन लगाओ, इज इट क्लियर। हाँ, सो बोलो यहां से सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू कितनी आएगी, बोलो बच्चों, बीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, 1.5, तो पावर में बोलो 15 इंटू 10⁻⁻⁴, दोनों के यूनिट सेम नहीं है। नीचे बोलो क्या है, आईबी कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5, अरे आए क्या समझ में, इंटू आर नॉट कितना है, 2 इंटू 10⁻3, आर आई कितना है 15 इंटू 10⁻1। सो बच्चों अभी कैलकुलेशन देखो आराम से, 15 15 कैंसिल, 2 2 गेट कैंसिल, खाली 10 के पावर देखो, अभी ये -5 प्लस 1 कितना रे, -4, तो ये चला गया, सो खाली कितना बाकी रह गया, 10 टू द पावर 3 मतलब कितना 1000। समझ में आया। तो साइमल्टेनियसली बच्चों मैं फॉर्मूले देता हूं, वो भी नोट डाउन करो। यहां से आपको आया अगर पावर गेन, तो वो होगा वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, फिर से उसका शॉर्टकट है बीटा स्क्वायर इनटू आर नॉट अपॉन आर, इज इट क्लियर। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला था, अब भी मैंने लिख दिया, वोल्टेज गेन क्या होता है, बोलो, बीटा इंटू आर नॉट अपॉन आर आई, करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, बेसिक फॉर्मूले आपके सब आ रहे हैं, हाँ इजी है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, खाली फॉर्मूले ध्यान में रखो। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर आता है 1000। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या है देखो, विथ फॉरवर्ड बायस मोड द पीएन जंक्शन, बच्चों फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो पहला ऑप्शन चला गया। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, अरे आपको कहा है इन विच पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, नो ना, पोटेंशियल बैरियर का इंक्रीज होना मतलब डिप्लेशन रीजन का बढ़ना, यहां तो डिप्लेशन रीजन कम हो रहा है मतलब बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब ये भी गलत। फॉरवर्ड बायस, यस इट एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच, तो दूसरा एक और क्वेश्चन मिल गया, इन पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस एक्ट्स एज अ open switch. So forward bias acts as a closed switch and reverse bias acts as a open switch. Is it clear? ठीक है, तो ये ऑप्शन कलर होगा। एनी डाउट? ठीक है। सो बच्चों उस क्वेश्चन को और दो तरीके से देखो, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वहां पे सही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी कुछ नहीं। चलो, इन पीएन जंक्शन डायोड पे विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, अरे बोलो, इंक्रीज होती है ना रिवर्स बायर में, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन क्या होती है, इंक्रीज होती है, कैसे, रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में तो कम होती है। वही क्वेश्चन चल रहे हैं, बेसिक पे ध्यान दे दो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट, in a study the transistor as an amplifier ratio of collector current to emitter current is 0.98, मतलब समझ में आया होगा, लेस देन 1 तो ये कौन होगा, अल्फा होगा। तो आपको पूछा है रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, मतलब को बीटा निकालना है, तो करो फाइन। कौन दिया है बच्चों, अल्फा दिया है, सो राइट अल्फा विच इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई दिया है 0.98। आपको पूछा है बीटा विच इज रेशियो ऑफ आई सी अपॉन आई बी, तो डायरेक्टली यूज करो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां से क्या लिखोगे रे, बोलो 0.98 है तो 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98, तो बोलो बच्चों 0.98 अपॉन 0.02 यानी कितना होगा रे, 49 होगा। सही है, ठीक है, बराबर ना, एनी डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ए ट्रांजिस्टर करंट रेशियो बीटा डीसी क्या होता है, बीटा किसका रेशियो होता है, कलेक्टर टू बेस, मतलब ये ऑप्शन सही है, किसके लिए, ट्रांजिस्टर के लिए, सही है ना। चलो नेक्स्ट, वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर एलईडी, ओए अब भी तो आपने कहा ना बाबा सर एलईडी इज कहां पे वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में, तो उसमें ये होता ही नहीं है रीजन, ये वैल्यू कितनी होती रही है, व्हाट इज, अगर मैं कंपेयर करूं सिलिकॉन और जर्मेनियम विथ दिस ग्राफ, तो ये तो मिलता है, नी वोल्टेज कितना होता है सिलिकॉन का 0.7 इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम का कितना होता है 0.3, लेकिन यहां पे जो होता है बच्चों वो होता है नियर अबाउट 1.823 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब क्या रे, इसमें क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल ज्यादा होगा, करंट कब फ्लो होता है, बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करके, नी वोल्टेज इंडिकेट्स द व्हाट, बैरियर पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब अगर इसको फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करना होगा तो हेवीली डोप करना पड़ेगा। अरे आया क्या समझ में, ये सब बेसिक्स एक दूसरे के रिलेटेड, इज इट क्लियर, सिंपल। किसका, पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इस वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्रेकडाउन वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज, इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बोलो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर रिस्पेक्टिवली हेवीली डोप एंड लाइट डोप, आया कि नहीं, मैंने बेसिक लिख के दिया है, कौन सा हेवीली डोप होता है, इमीटर, और लाइटली डोप बेस होता है, मतलब इमीटर एंड बेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a transistor having alpha is 0.8 is connected in common emitter configuration, when the base current changes by 6 milliampere the change in collector current, करो
क्या दिया है आप लोगों को? अल्फा की वैल्यू दी है 0.8। सेकेंड क्या दिया है? बेस करंट चेंजेस मतलब डेल्टा आईबी कितना दिया है? 6 मिली एम्पियर। क्या फाइंड करना है? डेल्टा आईसी फाइंड करना है। बोलो कैसे करोगे रे? सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे आप? बीटा करना पड़ेगा ना, करेक्ट? क्योंकि आपको मालूम है आईसी निकलना है तो मुझे आईपी है मेरे पास, तो वो क्या रहेगा? इज इट क्लियर? तो बीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो करो सब्स्टिट्यूट, कितना आएगा देखो। सो डेल्टा आईबी इज इक्वल डेल्टा आईसी इज इक्वल टू आईबी मल्टीप्लाई होगा मिली एम्पियर में तो 6 में ही किया, यहां पे आ जाएगा 0.98 अपॉन 0.8 अपॉन 1 माइनस 0.8। कितना हो जाएगा बोलो? ये 0.8 अपॉन 0.28/2 यानी 4, तो कितना आया? मिली एम्पियर। क्वेश्चन में कुछ डाउट? इजी अभी समझ में आ रहा है? फॉर्मूले पता हो गए तो कैलकुलेशन इजी है। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। In an intrinsic semiconductor and ordinary temperature, the correct relation between the number of electrons per unit volume. Now see बच्चों, yes, correct, very good. In intrinsic semiconductor, क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू होल डेंसिटी। देन सेकेंड थिंग बच्चों, इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया लेकिन आ सकता है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन, बोलो रिलेशन बिटवीन द, क्या है? याद होगा आपको, Ni² इज इक्वल टू Ne इंटू NH, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी, यानी यहां पे क्या होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का चार्ज डेंसिटी। अरे इज इट क्लियर? तो इस पे रिलेशन बन सकता है। और बाकी मैंने ऑलरेडी दिया है पी टाइप, एन टाइप। बोलो पी टाइप में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा? यही क्या आ सकता है? पी टाइप बोले तो यानी, और एन टाइप बोले तो यानी इज मच ग्रेटर देन NH। ठीक है, कुछ डाउट नहीं? तो यहां से इसका आंसर क्या होगा रे? यानी इज इक्वल टू NH। नेक्स्ट, a transistor has a voltage gain A, amount of beta is the output is applied to the input of transistor, transistor become oscillator। आएगा फिर से कौन सा इफेक्ट? बार्कहाउसेन इफेक्ट। तो कितना होना चाहिए वैल्यू ऑसिलेटर होने के लिए? बीटा ए शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्योर सिलिकॉन विल बिहेव एज। अभी नाउ सी, इंपॉर्टेंट है बच्चों, जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है कि बाबा बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो व्हाट हैपन, द बॉन्ड बिटवीन द, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, उसमें से समवॉट इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कब? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे। मतलब जब 0 केल्विन होगा तो देयर इज नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, उनके पास एनर्जी, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं, उनके पास एनर्जी ही नहीं है, तो वो क्या होंगे? कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ये कंडीशन किसकी है? इंसुलेटर की है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी, वैलेंस बैंड इज फुलफिल्ड, सो दैट्स व्हाई एट जीरो टेम्परेचर what the pure silicon or semiconductors behave as a insulators। ठीक है, next, when a small amount of impurities are added to semiconductor then it's generally its resistivity। बोलो अरे कितना इजी, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। डोपिंग किसके लिए करने का? डोपिंग किसके लिए करने का? चार्ज कैरियर्स को बढ़ाने का, यानी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का होता है तो डोपिंग करते हैं। तो आपको रेजिस्टिविटी पूछा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी। आया क्या समझ में? यस, नेक्स्ट,
In a diode, when there is a saturation current, the plate resistance will. बोलो, प्लेट रेजिस्टेंस, अरे रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो प्लेट रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है। अभी आपको क्या कहा है बच्चों, सैचुरेशन, सो सैचुरेशन मतलब करंट कांस्टेंट, तो डेल्टा I कितना होगा, जीरो ना बच्चों, करंट चेंज ही नहीं हो रहा है, एक सैचुरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू है, सो आरपी कितना होगा फिर, अरे इंफिनिटी होगा ना। सो ड्यूरिंग सैचुरेशन प्लेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इंफिनिटी होगा। ठीक है, एनी डाउट नहीं। नेक्स्ट, इन अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस इज 1000 ओहम, peak value of input signal voltage is 5 millivolt, beta is 60, the peak value of output current। चलो क्या क्या दिया है, राइट करो पहले, क्या समझ में आ रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस RI दिया है, कितना है 1000 ओहम। सेकेंड इनपुट वोल्टेज दिया है बच्चों, कितना है इनपुट वोल्टेज 5 मिली वोल्ट, ठीक है। बीटा दिया है 60 और कैलकुलेट क्या करना है, पिक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, मतलब कौन रे, आउटपुट करंट मतलब कौन होता है, अरे कलेक्टर, अरे समझ में आ रहा है, मतलब कौन फाइंड करना है आपको, IC फाइंड करना है। इज इट क्लियर? अभी मुझे बताओ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में बीटा क्या होगा, IC अपॉन IB होगा। अरे समझ में आ रहा है? तो यहां पे आपको निकलना है IC, तो IC क्या होगा, बीटा इंटू IB होगा। तो IB नहीं है आपके पास, लेकिन बच्चों उसके लिए तो दिया है ना, रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज दिया है। तो मुझे यहां से बताओ ये दोनों कंडीशन से करंट क्या होगा रे, बेस करंट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R, 5 मिली वोल्ट यानी -3 अपॉन रेजिस्टेंस 10 टू द पावर 3। तो IB कितना होगा बच्चों, सॉरी हाँ बराबर, सो 5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। अरे क्वेश्चन पक्का समझ में आया? तो यहां से आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिल गया कि क्या फाइंड करना है आपको, IC। तो IC बीटा कितना दिया है 60 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, सो 65 का 300 यानी 3 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। कितना आएगा, 3 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। क्लियर? कुछ डाउट नहीं, कैसे भी किया लेकिन आंसर आया, हाँ ठीक है, कुछ डाउट, चलो ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन इज 40, इनपुट एंड आउटपुट इंपेडेंस, इंपेडेंस मतलब है क्या एक्चुअली, वो रेजिस्टेंस ही है, करेक्ट। कहां आता है इंपेडेंस, कंबाइन रेजिस्टेंस LCR सर्किट, ठीक है। सो दिया है द पावर गेन ऑफ द कॉमन इमिटर, निकाल सकते हो, फॉर्मूले दिए है मैंने, पहले क्या क्या दिया है बोलो रे, वोल्टेज गेन दिया है मतलब AV कितना है 40, आपको क्या है इनपुट एंड आउटपुट, सो कैन आई से बच्चों रेजिस्टेंस R इनपुट कितना है 100 ओहम एंड R आउटपुट कितना है 400 ओहम। अरे समझ में आ रहा है ना, इंपेडेंस, लेकिन है क्या वो रेजिस्टेंस। सेकेंड, पावर गेन पूछा है बच्चों आपको, है ना, पावर गेन AP, ठीक है, करेक्ट। सो सिंपल ना, मुझे बताओ, आप पहले फॉर्मूले को पकड़ो, आपको क्या फाइंड करना है, पावर गेन। तो मैंने कहा है पावर गेन क्या होता है, बोलो, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन है ना आपके पास डायरेक्ट 40, तो कौन नहीं है रे, करंट गेन नहीं है। अभी करंट गेन कैसे निकालोगे बोलो, अरे फिर से दूसरा फॉर्मूला सोचो ना जरा बाबा, वोल्टेज गेन क्या होता है, हाँ बीटा इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट, मतलब कौन, बीटा मतलब करंट गेन ना, हाँ तो AI इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। समझ में आया पक्का? तो यहां से कौन मिलेगा मुझे, करंट गेन मिलेगा। सो करंट गेन कितना होगा, AV कितना दिया है 40 इंटू इनपुट कितना 100 डिवाइडेड बाय 400, तो कितना मिल गया बच्चों, करंट गेन मिला 10, आंसर फिनिश। वोल्टेज गेन था, करंट गेन नहीं था, यहां से करंट गेन निकाल दिया, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा बोलो,
सो ए भी 40, ये आया 10, तो कितना होगा 400 होगा। कुछ डाउट हो बरोबर ना? हा नाही नाही, मी चेंज करून कॅल्क्युलेशन पण केलं। हाँ ठीक है ना, कुछ डाउट नहीं ना? सो यहां से आता है एपी कितना आता है 400, मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशंस किए ना शिफ्ट करके, ठीक है। कुछ डाउट क्वेश्चन में समझ में आया? तो क्वेश्चन कैसे चेंज हुआ, वोल्टेज गेन से करंट गेन निकाला, करंट गेन यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो पावर गेन मिल गया। इज इट क्लियर? ठीक है, सो आंसर आता है 400, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है देखो, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सर्किट बिल्ट यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर। बच्चों ये किसके टाइप है रे? एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेसिक क्लासिफिकेशन पहला, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में फिर ये दो टाइप है, पीएनपी एंड एनपीएन, ठीक है। If DC current gain is 300, RC is 4 kilo ohm, VCC is 20 volt, what is the minimum base current VC to reach the saturation? मतलब फाइंड क्या करना है रे? अरे बोलो, बेस करंट फाइंड करना है। अभी गिवन क्या क्या है बोलो? सबसे पहले डीसी करंट गेन, मतलब कौन दिया है रे? बीटा ना, कितना है बीटा? 300। मैंने कहा ना करंट गेन, इसलिए तो मैंने वैल्यू बताया, ज्यादा वैल्यू 1 के ऊपर बीटा होता है, अल्फा नहीं होता, लेस देन 1, तो बीटा दिया है। आगे बोलो, रेजिस्टेंस दिया है, कितना है 4 किलो ओम, ठीक है। दूसरा वीसीसी कलेक्टर कितना है 20 वोल्ट, ये 4 इंटू 10⁻³ ओहम। बच्चों मुझे बताओ, आइडिया आया होगा, बीटा दिया है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? आईसी अपॉन आईबी। आईबी है क्या आपके पास? नहीं, आईबी निकलना है, ठीक है। सो आईबी का फॉर्मूला क्या होगा? आईसी अपॉन बीटा। बीटा है, आईसी नहीं है, आईसी निकालने के लिए वीसीसी एंड आरसी है ना। अरे आया क्या समझ में? तो निकालो, तो यहां से क्या बनेगा बोलो? आईसी क्या बनेगा? आईसी इज इक्वल टू बोलो वीसीसी अपॉन आरसी। वीसीसी विद्यानंद कोचिंग, चलो वीसीसी अपॉन आरसी करो। वीसीसी कितना है 2 इंटू 10⁻⁴, आरसी कितना 4 इंटू 10⁻�3, तो कितना आएगा रे बच्चों? 1/2 0.5। अच्छा सही है क्या? इज इट क्लियर? अभी आईसी मिल गया तो सब्स्टिट्यूट करो यहां पे। सो बोलो फाइनली क्या होगा? सो फाइनल आंसर आईबी इज इक्वल टू, आईसी आया 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय बीटा है 300, यानी 3 इंटू 10⁻²। तो मालूम है 5/3 कितना रे? 1.66 इंटू, बराबर है ना रे? हाँ 1.66 इंटू 10⁻⁻5। ये किस में आया? एम्पियर में आया, आपको माइक्रो में है। सो कितना हो जाएगा? आईबी इज इक्वल टू 16.66 इंटू 10⁻⁻6, यानी डायरेक्टली राइट करो माइक्रो एम्पियर, 16.66 माइक्रो एम्पियर होगा। डायग्राम को देख के घबराओ मत, हाँ बेसिक ही था, ये निकालने का था। यहां से आईसी निकाला, बीटा को पकड़ा, आईबी निकाल दिया। कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट बोलो। सो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर? बच्चों यहां पे वैल्यू मालूम होनी चाहिए, स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग से वही चल रहा है। सिलिकॉन मतलब 0.7 और जर्मेनियम मतलब 0.3, दिया नहीं है, पता होना चाहिए। वो डायोड का रेजिस्टेंस है, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वो होगा। अरे आया समझ में? ठीक है। सो बच्चों मुझे अभी बताओ, यहां से अभी कैलकुलेशंस करो, मैं डायग्राम फिर से निकालता हूं। नाउ सी बच्चों, इसकी जगह अभी मैं क्या करता हूं रे? रेजिस्टेंस देता हूं। कितना है आपने बताया? 0.7। आगे बढ़ो, यहां पे कितना रे? 300 ओहम। आपको पूछा है एमीटर कितना रीडिंग शो करेगा, यहां पे दिया है 5 वोल्ट। सही है क्या? सो बच्चों है कुछ नहीं, करंट फाइंड करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ स्टडी करिए है, खाली वही अप्लाई करने का है। खाली डायोड की जगह डायोड का वोल्टेज लेना है। समेशन ऑफ वोल्टेज एंड ईएमएफ इज इक्वल टू 0। तो करो, यहां से बताओ। मैंने सपोज कंसीडर किया बाबा, ए से स्टार्ट किया,
हाँ, तो करो। अगर ए बी सी डी ए मैंने कंसिडर किया, बोलो बच्चों साइन कन्वेंशन यूज करो। प्लस टू माइनस माइनस 0.7, इसके अक्रॉस क्या होगा आई आर, मतलब कितना आएगा -300 आए ना, लूप का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम ना, यहां पे आयो -2 प्लस तो क्या होगा +5 इक्वल टू 0। पक्का समझ में आया? तो करंट निकालने का है ना। सो नाउ सी कितना हो जाएगा रे, यहां से देखो ये 300 आए उधर चला जाएगा, और यहां पे 0.7 मतलब कितना होगा 4.3 होगा। सो करंट कितना रे, करंट इज इक्वल टू 4.3, करंट इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻²। सो कितना होगा 3 1 का 3, 3 4 12, 1 इंटू 10⁻²। सो बच्चों अभी आपको मिली में दिया है, यहां पे 10 का पावर -2 एम्पियर आया, मतलब क्या रे I इज इक्वल टू 14.3 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी I इज इक्वल टू 14.3 मिली एम्पियर। अरे समझ में आया क्वेश्चन? खाली किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो, सॉल्व करो। यहाँ पे एक के पीछे एक सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, नहीं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी दिया रहता है, ऐसे कनेक्ट किए होंगे, यहाँ पे एक सिलिकॉन होगा, यहाँ पे एक जर्मेनियम होगा, ये इसके अक्रॉस कनेक्ट किया हो, कुछ भी कॉम्बिनेशंस आएंगे, लेकिन फंडामेंटल वही। एनी डाउट? पक्का समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये करोगे आप लोग, ट्राई करो। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज दिया है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट पूछा है आप लोगों को। करो बच्चों, आएगा, डेफिनेटली आएगा। यहां पे बोलो जर्मेनियम की जगह, ठीक है ऐसा ही लेता हूं, हाँ। देन आगे दिया ये बच्चों डायरेक्टली 2 और 1 क्या होगा, सीरीज में है तो 3 ओम लिख दो एक ही जगह, है ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो यहां पे आ गया 3 ओम। आगे बोलो फिर से सिलिकॉन का डायोड है, ठीक है, तो कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ 19 वोल्ट। ये बोलो पहला कौन है, जर्मेनियम, तो कितना होगा यहां पे 0.3, यहां पे कौन है सिलिकॉन, कितना होगा 0.7, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव। फिर से सर्किट कंसीडर करो, मैंने कंसीडर किया ए बी सी डी, अरे सही है, तो करो अप्लाई। समझ में आया? पिछले क्वेश्चन जैसा है, सर ए बी सी डी ए कंसीडर किया, सो डायरेक्शन ऑफ लूप, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो। बोलो इक्वेशन का स्टार्टिंग क्या होगा, पहले -0.3 माइनस आई आर यानी 3i माइनस 0.7 -2 प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अभी 0.3 0.71 -1 प्लस 19 3i इज इक्वल टू 18, तो I आया 6 एम्पियर। अरे इज इट क्लियर? तो करंट कितना आया बच्चों 6 एम्पियर। समझ में आया? अभी प्रीवियस क्वेश्चन सेम था, खाली किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो, 6 एम्पियर। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट, ये मैथ में आपने है ना, ये पूरा चैप्टर ही है ना, तो मुझसे अच्छा वहां से कर सकते हो, है ना, मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, वहां पे पूरा चैप्टर ही स्टडी किया है, तो ठीक है, अजम्पशन। चलो, इन अ लॉजिक सर्किट डायग्राम ए बी सी आर द इनपुट एंड y इज द आउटपुट, द आउटपुट y इज हाई, तो ऑल दिस कंडीशन सब्स्टिट्यूट करके बोलो। आउटपुट क्या चाहिए रे, हाई चाहिए। मुझे बताओ ये कौन सा है, एंड गेट, यानी यहां पे क्या होगा 1 1 होगा, हाँ सही है, हाँ। सेकेंड मतलब यहां पे कौन आया, A1 आया कंपलसरी, अरे बराबर। अभी बी और सी के बारे में सोच रहे हैं, और गेट है, नॉर है ना, हाँ, तो मतलब यहां पे 0 0 होगा तो 0 आएगा, और उसका अपोजिट 1 आएगा, मतलब यहां पे 0 यहां पे 0, अरे सही है क्या, मतलब क्या होगा, अरे पक्का समझ में आया ना, एनी डाउट? नहीं, ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन अ फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, अभी बोलो बताया मैंने फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में P टू P, N टू N, पॉजिटिव टू P, निगेटिव टू N, और रिवर्स बायस में P टू N, N टू P, P टू निगेटिव, N टू पॉजिटिव। तो बोलो अभी क्या है,
फॉरवर्ड बायस में पी रीजन इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होगा, ठीक है। चलो क्या है देखो, द आउटपुट ऑफ NAND गेट इज शोन इन द ट्रूथ टेबल। बोलो, हमने बनाया था ना NAND गेट का, प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। क्या होगा? मेरे ख्याल से R होगा। अरे सही है क्या ये? ठीक है। फॉर एन इंसुलेटर फॉरबिडन एनर्जी गैप, अभी जीरो मत बोलो, इंसुलेटर के लिए पूछा है। हाँ ज्यादा होता है ना, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने लिख के दिया, तो कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दबाजी में जीरो याद आता है जल्दी, ऐसा मत करो। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।